بڑھاپے میں آ گیا تو بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں، میری زندگی تکمیل ہو چکی ہے، اب میں کچھ ہی دنوں کا مہمان بنا ہوں، اگر تمہیں یہ سلطنت چلانی ہے، اگر تمہاری بادشاہت برقرار رکھنی ہے تو میرے پاس تم اپنے قوم میں سے کسی ایک کو بھیجو تاکہ میں اپنی ساری شیطانی طاقت ان کو میں سکھا دوں۔ تو بادشاہ نے ایک غریب بچے کو چنا، اور وہ لڑکا، وہ نوجوان لڑکا راستے سے جا رہا تھا، اس کو ان کے سپاہیوں نے پکڑا اور بادشاہ کے سامنے حاضر کر دیا اور پیش کر دیا، اور کہہ دیا بادشاہ نے کہ تمہیں جتنی مال و دولت چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، تمہیں جو چاہیے وہ میں ساری چیزیں تمہیں عنایت کر دوں گا، وہ میں ساری چیزیں تمہیں دے دوں گا، لیکن یہ جو جادوگر ہے یہ جس طریقے سے جو کام تم کو سکھائے وہ کام سیکھ لو، اور اس کے بعد میں تمہیں محل میں پناہ دے دوں گا اور تمہاری ایک غریبی سے تمہاری غریبی ختم ہو جائے گی۔ تو وہ نادان بچہ، وہ ابھی نوجوان لڑکا ہے، اس کے دل و دماغ میں کچھ نہیں آیا، اور انہوں نے جادوگر کو دکھا دیا اور کہہ دیا کہ فلاں ٹھکانے پر میرے حجرے میں چلے آنا، اور وہاں سے جو کچھ میں بتاؤں گا وہ سیکھ لینا۔ وہ بچہ ہاں بھر لیا، اور جب وہ صبح ہوئی تو وہ بچہ جانے لگا، تو جس راستے سے وہ بچہ گزر رہا تھا اسی راستے میں ایک راہب ہوا کرتا تھا، ایک ایسا راہب کہ جن کی بھویں آنکھوں کو چھپا رکھی تھی۔ راہب اس کو بولتے ہیں جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ شخص ہوتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے ولی کہتے ہیں، اس زمانے میں راہب ہوا کرتے تھے، راہب لوگ بولا کرتے تھے۔ تو اس نوجوان وہ لڑکا جب اس راستے سے جاتا تھا تو ایک جھوپڑی سے آواز آتی تھی، اللہ اللہ کی آواز آتی تھی، اور وہ ذکر و اذکار کی آوازیں وہ لڑکا سنتا تھا، اور وہ کچھ دیر تو وہاں پر ٹھہرتا، اور کچھ دیر وہ پھر بادشاہ نے جس جادوگر کو مقرر کیا تھا اس جادوگر کے پاس چلا جاتا، اور وہ جادوگر کے پاس جاتا تو وہ یہ کہتا کہ اللہ کی تم عبادت نہ کرو، تم شیطان کی عبادت کرو، تم ہماری جادو سے کوئی بڑھ کر نہیں ہے، ہمارے اندر جو کلا ہے ہمارے کلا سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ وہ نوجوان لڑکا ہر طرح کی باتوں کو سنتا تھا، وہ جادوگر کے پاس جاتا تو شیطانی باتوں کو سنتا، اور جب راہب کے پاس بیٹھتا تو وہ راہب یہ کہتا کہ اے نوجوان لڑکے اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ جب جاتے رہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب پتا چلا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اس نوجوان لڑکے کے دل کے اندر ایمان پختہ ہو چکا ہے۔ جب ایمان پختہ ہو گیا تو وہ نوجوان لڑکا اب جادوگر کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ جب جادوگر کے پاس جانا چھوڑ دیا، کئی دنوں تک نہیں آئے تو بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ نوجوان لڑکا میرے جادوگر کے پاس نہیں جا رہا ہے، وہ جادو نہیں سیکھ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب اس نوجوان لڑکے کو اپنے سپاہیوں سے کہا گیا کہ جاؤ اس نوجوان لڑکے کو اٹھا کر لے کر آؤ، اس نوجوان لڑکے کو اٹھا کر لایا گیا۔ اس نوجوان لڑکے نے سے پوچھا گیا، اے نوجوان لڑکے تم بتاؤ، کیا تمہیں مال و دولت نہیں چاہیے؟ کیا تمہیں اپنی جان کی فکر نہیں ہے؟ کیا تم اپنی زندگی گزارنا نہیں چاہتے ہو؟ وہ نوجوان، وہ 15 سال کا نوجوان لڑکا کہتا ہے، تم کس زندگی کی بات کر رہے ہو؟ جو زندگی جس نے مجھے عطا کیا ہے اس زندگی کو میں نے اس کے حوالے کر دیا ہے، میری پوری زندگی اس کے حوالے ہے۔ تو وہ بادشاہ رنج و ملال میں غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے سپاہیوں جاؤ اس نوجوان لڑکے کو پہاڑ کے اوپر لے کر جاؤ اور پہاڑ سے اس کو نیچے گرا دینا۔ وہ نوجوان لڑکا ہنستا ہوا
उन सिपाहियों के साथ चला जाता है। और जब जाता है तो पहाड़ में वो जब पहाड़ के पास जाता है और उसको गिराना चाहता है, लेकिन उनको उस बंदे को, उस नौजवान लड़के को रब पर भरोसा था, ईमान पुख्ता था, ईमान तकमील था, ईमान पूरी तरीके से उस नौजवान लड़के के अंदर भरा हुआ था। उसने रब तबारक व तआला से कहा कि ए रब्बे कदीर, अगर तू चाहता है कि मैं मर जाऊं तो फिर ये जो जाती बादशाह है ये फिर मुसलमानों पर जुल्म करना शुरू कर देगा। ए रब्बे कदीर, उस बादशाह ने मुझे मारने के लिए इस पहाड़ में लेकर आया है। ए रब्बे कदीर, ए खालिक अर्द व समावात के मालिक, जिस तरीके से ये मुझे इस पहाड़ में मारने के लिए लाया है, ए रब्बे कदीर तू मुझे बचा ले और इनके सिपाहियों को मार डाल। रब्बे कदीर ने ऐसा ही किया, उन तमाम सिपाहियों को मार दिया। वो नौजवान लड़का हंसता हुआ खेलता हुआ वो बादशाह के दरबार में पहुंचता है। बादशाह के दरबार में जो ही पहुंचता है तो बादशाह हैरान है, परेशान है कि ये तू कैसे बच गया है, तू तो पहाड़ों से उतर, तुझे तो कुचलने वाला था, तुझे तो धक्के मार के गिराने वाला था, क्या तुम कैसे बच गए? तो वो नौजवान लड़का कहता है, ए बादशाह तू मुझे मारने के लिए भेजा था, लेकिन मैं जिसकी इबादत करता हूँ उसने तेरे सिपाहियों को मार डाला। बादशाह ने को फिर गुस्सा आया, उन्होंने अब तैरने वाले, समंदर में तैरने वाले लोगों को बुलाया। बहुत सारे लोगों को बुलाने के बाद कहा और इस नौजवान लड़के को समंदर के बीच में ले जाना और इसको समंदर के बीच में ले जाकर इसको डुबो देना, इसको नीचे ढकेल देना, क्योंकि ये तैरना नहीं जानता है, क्योंकि ये इसको पानी में तैरना आता नहीं है, ये डूबकर मर जाएगा। तो वो नौजवान लड़का फिर उन सिपाहियों के साथ चला जाता है। जब बीच समंदर में पहुंचता है तो वो नौजवान लड़का फिर रब्बे करीम से यही दुआ करता है, ए रब्बे कदीर, ए खालिक के अर्दो समावात के मालिक, अगर तू चाहता है कि मुसलमानों पर जुल्म सितम ना हो, ताकि उन लोगों ने जिनके दिलों के अंदर कम ईमान भरा हुआ है, अगर तू मुझे मार डालेगा, तो अगर तू मुझे इस दुनिया से ले चला जाएगा, तो जिन लोगों के दिलों के अंदर ईमान कमजोर है उन लोगों के अंदर कैसे ईमान पुख्ता होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी चीजें, ये सारी बातें सहाबा किराम को बता रहे हैं। जब उस नौजवान लड़के को वहां पर समंदर के बीच रास्ते में लेकर गया तो उस नौजवान लड़के ने दुआ करना शुरू कर दिया। जब दुआ करना शुरू किया तो रब्बे करीम ने वो उसकी दुआ को कबूल कर लिया। समंदर की मौजें तैयार हो गई, समंदर मौजें मारने लगे, समंदर में तूफान पैदा हो गया। समंदर ने इस तरीके से उन लोगों को डुबो दिया कि जो तैरने वाले थे उसको समंदर के गहराइयों में ले जा पहुंचा और उस नौजवान लड़के को उस कश्ती के सहारे उसको किनारे पे लगा दिया। और जब उससे बंद वो नौजवान लड़का फिर बादशाह के दरबार पर पहुंचता है और हंसता हुआ कहता है, ए बादशाह तू मुझे मारना चाहता है, ले मेरे रब ने, मैं जिसकी इबादत करता हूँ उसने तेरे सिपाहियों को मार डाला है, उसने तेरे बंदों को मार डाला है। जो तू कहता है कि एक रब की इबादत ना कर, देख हमने एक रब की इबादत की है, हमने एक रब को पूजा है, हमने एक रब की इबादत की है, हमने ईमान को मुकम्मल किया है। देख ले तुम्हारे सिपाही जो तैरने वाले थे समंदर में वो डूबकर वो घर को हो चुके हैं, वो डूब चुका है, मैं बच चुका हूँ। तो वो उस बादशाह को बहुत बहुत रंजो गम होता है, बहुत वो परेशान हो जाते हैं कि इस नौजवान को आगे मारा जाए तो कैसे मारा जाए। वो नौजवान लड़का कहता है, ए बादशाह क्या तू मुझे हकीकतन में मारना चाहता है? तो वो बादशाह कहता है, हाँ हाँ मैं तुम्हें हकीकतन में मारना चाहता हूँ। तो वो नौजवान लड़का कहता है, एक ऐसा करना, एक मैदान में चलना और पूरे कौम के लोगों को बुला लेना और उस कौम के लोगों के सामने मुझे मार देना। सिर्फ जब तुम मुझे मारने की कोशिश करो तो सिर्फ इतना कह देना कि मैं ये जो मार रहा हूँ अल्लाह की तरफ से मार रहा हूँ। उस नौजवान ने ये कहा और फिर एक तरीके से एक मैदान
सामने पूरे कौम के लोगों को इकट्ठा किया गया, पूरे लोगों को जमा किया गया और बहुत सारे लोगों के सामने जब उस नौजवान लड़के को खड़ा किया गया और उस नौजवान लड़के को मारना चाहा, उस वक्त बादशाह ने किसी का नाम नहीं पुकारा, वो तीर चलाता रहा लेकिन उसको कोई असर नहीं हो रहा है, उसके बाजू से निकल जा रहा है, उनके साइड से निकल जा रहा है। जब उस लड़के ने कहा कि ए बादशाह तू मुझे मारना चाहता है, एक तीर चला और रब्बे करीम का नाम ले ले और कह दे अल्लाह के नाम से मैं तेरे बंदे को, ए रब्बे कदीर मैं तेरे बंदे को तेरे ही नाम से मारता हूँ, तो उसी तरीके से तू तीर चला तो मुझे लग जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। उस नौजवान लड़के ने यूं कहा, तो जब यूं कहा तो लोगों ने देखा कि जब उस बादशाह ने रब्बे करीम का नाम अदा किया, रब्बे करीम का नाम लिया, उस लड़के के कनपट्टी में तीर लगा, वो लड़का इंतकाल कर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोगों ने देखा एक अल्लाह की इबादत करने वाले का ये एक पावर है, तो ये बादशाह है, इसके पास शैतानी ताकत है, इसके पास कुछ नहीं है, ये तो इस बच्चे के सामने, इस नौजवान लड़के के सामने ये फेल है। इसने जब रब का नाम लिया तो तब ये लड़का मरा है, उससे पहले इसने हजारों कोशिशें की लेकिन यह लड़का नहीं मरा था। अब वो जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे सबके सब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और लोगों ने देखा, लोगों ने सारा माजरा हासिल कर लिया। लेकिन बादशाह को ये नहीं पता कि जब कोई किसी अल्लाह के एक नेक बंदे को मारता है तो वो हजारों लोगों को नेक बनाकर छोड़ देता है। जब बादशाह ने देखा कि लोग तो अब अल्लाह ही अल्लाह बोल रहा है, अल्लाह के सिवा कुछ अदा नहीं कर रहा है, जब बादशाह ने देखा तो उन बादशाह ने हुक्म दिया कि एक गड्ढा किया जाए, उसमें आग लगाई जाए और आग के शोले भड़का दिया जाए। जब आग के शोले भड़का दिए गए, जितने भी लोग अल्लाह अल्लाह पुकारने वाले थे सबको वो बादशाह के सिपाही वो आग में ढकेलता गया। लोगों ने खुशी खुशी आग में जाना पसंद किया, लेकिन एक ऐसी औरत थी जिनके गोद में एक छोटा सा बच्चा था, दूध पीता हुआ बच्चा था। उसने जब अपने आग के करीब तो गया लेकिन आग के पास वो जाता तो था लेकिन उसके दिल में वो ये ख्याल आया कि मैं आग में जाऊं तो मेरा बच्चा जल जाएगा, मैं जल जाऊंगी, मेरे सारी चीजें वो दिलो दिमाग में सोच ही रहे थे। तो उस नौजवान, उस छोटे से दूध पीते बच्चे की जबान ने जुम्बिश की, लबों को हिलाया, कहा ऐ मेरी माँ, इस तरीके से जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि हजारों बार मरने से बेहतर है कि हम एक मर्तबा अल्लाह के नाम पे हम कुर्बान हो जाए हम अपनी जिंदगी को, ताकि हम इस दुनिया की आग को देखकर हमें इस आग दुनिया की आग में चलकर हम ताकि आखिरत के जन्नत में चले जाए, ताकि हमें ये जो ऐ मेरी माँ, ये जो तुम आग देख रही हो ये तुम्हारे दिलो दिमाग की वहम है। ऐ मेरी माँ सुनो, तुम कूद जाओ और रब्बे करीम का नाम ले लो, क्योंकि ये तुम्हें आग तो नजर आ रहा है लेकिन रब्बे करीम ने अपने फरिश्तों के जरिए यहाँ पर फूल बरसाया हुआ है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये होता है अल्लाह के वलियों की शान, नेक बंदों की शान, कि वहां पर जितने भी बंदे थे एक नौजवान लड़के को देखकर